बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर वक्कास अब्दुल सलाम है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट GSTC मुगलपुरा लाहौर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई हैव ज्वाइन टैक्टा in November 2016 as a principal in Government Technical Training Center, District J, Gujarat. It was my first appointment in TAVTA. The key responsibilities of my duty was administrative as well as financial and education monitoring. First of all, I want to say that enrollment and admission during my tenureship was more than 100%, and the result was also 100%. Discipline of the institute was remarkable. Cleanliness and maintenance standards were excellent. During my tenure as a principalship, I have planted 4,000 plants within the premises of the institute to provide a healthy learning environment to the students. तो ये जो पीरियड है सारा इसमें जो मेजर फोकस था मेरा, इट वाज ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हम स्किल्स की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको किस तरह से एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उनकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मैच कर सकें। इसके अलावा there was sufficient budget available in all budgeting heads. In addition to that, my responsibilities was I was a master trainer of a digitized monitoring and evaluation system which was introduced by TAPTA in 2019 and 2020, in which all data of the institute was digitized and monitored by the institute as well as the head office. So I was a master trainer of the 4 districts of Punjab, and I have implemented this system into the technical institutes of the Punjab. तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है फर्स्ट जॉब का। उसके बाद आई वाज ट्रांसफर टू R&D सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, टैप्टा सेक्रेटरीट लाहौर। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 माह सर्व किया है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इस जॉब में वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च थी, नए इस्टेब्लिश होने वाले अदारों की फिजिबिलिटी स्टडी थी, जो अदारे हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हैं उनको अपग्रेड करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी थी, जो DAE के हमारे पास कोर्सेज़ हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए जो गैप एनालिसिस किया जाता है वो कंडक्ट करना था। इसके साथ जो कोर्सेज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए, ट्रेनिंग्स की इम्प्रूवमेंट के लिए हम TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं, वो उसकी सर्वे कंप्लीशन टारगेट था कि ये हमने मुकम्मल करना है, तो वो मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मुगलपुरा लाहौर में मेरी ट्रांसफ़र हुई। यहाँ पे जो मेरी ड्यूटीज़ की नेचर थी वो तब्दील हो गई थोड़ी, और आई बिकेम द मास्टर ट्रेनर एंड लीड ट्रेनर ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, सोलर PV सिस्टम कोर्स and as well as the renewable energy resources courses. The first training which I was conducted in GSTC Mughal Lahore was in December 2023 in the field of electrician trade. It was the skill upgradation training of teaching staff of TAPTA. It was very successful. We trained the staff at COE and as well as PEL Private Limited Industry. After that, GIG 1 month training overseas returning was conducted, in which 30 participants participated in the training program.
and all the students who got enrolled, they pass out. After that, second batch was completed, in which 20 students was enrolled in the program, and all the students who got enrollment, they pass the course and get employment in the market. So it was very successful program. In addition to that, in summers, the industrial trainings are conducted in COE. These trainings are conducted at the industrial floor. The major industries which we have partners are PEL Private Limited, Unique Solar Private Limited, Sky Power Private Limited, and Creative Electronics Private Limited. So the industrial trainings are conducted in collaboration with industries. The teachers who obtain training, when they go to their institutes, they deliver the training to their students and play a vital role in polishing the skills of their trainees. So it was a very successful program. In addition to that, I have assigned the additional duties to perform international accreditation document as well. I have successfully completed the task. In addition to that, other tasks are also assigned by the administration of the institute, and I have successfully completed that task. तो ये तो एक मेरा वो है जर्नी जो कि एजुकेशन के हवाले से है. नाउ आई वांट टू सॉरी ये जॉब के हवाले से है. नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई basically my practical engineer. I have completed my basic engineering degree of the university. After that, I enrolled in PhD program, and recently I am research scholar in the field of electrical engineering. I am I am taking part in Chapter Rehan Foundation Artificial Intelligence training program, and I have assigned a task to conduct a journal interview with my guest in my studio. तो इसलिए मैं आपको जो गेस्ट हैं उसका तारुफ कराता चलूँ. गेस्ट हैं हमारे मिस्टर हसन. ये सोलर पीवी सिस्टम कोर्स में स्टूडेंट भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दिलचस्पी रखते हैं, और ये मेरे साथ और रेहान अलावाला के साथ फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड में. तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं. मिस्टर हसन, अपना तारुफ करवाएं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं एक स्टूडेंट हूँ. माय नेम इज हसन. मेरी बेसिक स्टडी है, मैट्रिक किया मैंने, और अब मैं सोलर पीवी सिस्टम का कोर्स कर रहा हूँ टेक्निकल टेक्नीशियन कॉलेज से. अच्छा, मैट्रिक कब किया है?
हेलो, क्या हाल है? मैट्रिक में मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे? और मैट्रिक में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? उर्दू। उर्दू क्यों पसंद था? हमारी कौमी ज़ुबान भी उर्दू है और उर्दू बोलने में भी अच्छी लगती है, इसलिए उर्दू पसंद है। उर्दू में नंबर कितने आए थे? उर्दू में मैट्रिक में 75 नंबर आए थे। इस क्लास में सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? ए, इस क्लास में भी तो कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं लगता, सब लेक्चर अच्छे लगते हैं। मैट्रिक में कितने नंबर थे? मैट्रिक में टोटल हो रहे थे 590। अगर सारे मजमून अच्छे लगते तो फिर नंबर इतने कम क्यों आते हैं? वो स्टडी की तरफ फोकस कम था। शुरू से स्टडी की तरफ फोकस नहीं है। नहीं नहीं, वो एंड पे आके हो गया था फोकस कम। एंड पे आगे क्या हो गया? वो फिर दोस्तों के साथ भाई नहीं करेगा ना, इसी तरह कुछ। शुरू में यानी तुम ठीक थे, एंड पे आके खराब हो गए। जी। अच्छा, मैट्रिक के बाद सोलर के कोर्स में दाखिला लिया? मेरा आगे ज़हन था मैं बिजनेस करूँगा सोलर के कोर्स में, आगे भी दूर सोलर का है, इन्वर्टर का, तो इसलिए मैं ये डिप्लोमा किया। सोलर का बिजनेस करने के लिए तो बड़ा मैच्योरपन चाहिए, और तुम तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती हो। अब मैं नियत करके आया था, ये सोलर का कोर्स नियत करके किया मैंने। अगर बिजनेस में खराब हो गए तो फिर क्या करोगे? अब बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। सोलर में क्या बिजनेस करना चाहते हो? ये सोलर लगाना सीलिंग का। सोलर का कोर्स पढ़ा अभी तक? यस, मंथ हो गया मुझे। तो सोलर में क्या पढ़ा अभी तक? ये कि पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, और ये कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। तो ये समझ आया? यस, काफी हद तक समझ आ गया। माइक ओपन करके जरा ऊंची बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ काफी हद तक समझ आ गया। तो अब आगे क्या इरादा है, क्या क्या समझना है इस कोर्स में? जी सर जी, क्या कहा आपने? सोलर का जो कोर्स बाकी रह गया है, इसमें क्या चीज सीखना चाहते हो? यही सोलर प्रोजेक्ट बनाना और कनेक्शन वगैरह करना सीखना चाहिए। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी है? ये है, कौन से एआई टूल इस्तेमाल कर लेते हो? चैट जीपीटी और जिमिनी। चैट जीपीटी बेहतर है या जेमिनी बेहतर है? जिमिनी बेहतर है, वो 5 सेकंड में आंसर दे देती है और चैट जीपीटी टाइम देता है।
क्या चैट जीपीटी या जेमिनी को इस्तेमाल करके टीचर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? नहीं उस्ताद, क्यों ख़त्म नहीं होती? वो चैट जीपीटी उस्ताद की जगह नहीं दे सकता। वो इस तरह नहीं समझा सकता जिस तरह उस्ताद समझा सकता है। और चैट जीपीटी मुझे आंसर देना और उस्ताद ने समझाना इस तरह बोल के ये इस तरह होना ये इस तरह होना। चैट जीपीटी इस्तेमाल करके कभी असाइनमेंट बनाई है? जी बनाई है। कोई अपनी अकल भी इस्तेमाल की है या चैट जीपीटी से कॉपी करके आगे जमा करवाया? अपनी अकल थोड़ी इस्तेमाल किया है, ज्यादा चैट जीपीटी इस्तेमाल की है। तो स्टूडेंट तो ये भी करते हैं कि जो असाइनमेंट उन्हें दें वो वही कॉपी करके उसी कोई नकल करके तो वो उस्ताद को जमा करवा देते हैं। तुम भी कहीं वैसे ही तो नहीं करते? नहीं ऐसे नहीं करना। चैट जीपीटी को कभी लेक्चर को समझने के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं। उस्ताद क्लास में जो पढ़ाते हैं उसमें अगर कोई समझ ना आई हो तो कभी चैट जीपीटी के ऊपर वो टॉपिक लिख के उसे मदद ली है? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, उस्ताद से समझ लेते हैं दोबारा पूछ लेते हैं क्वेश्चन। चैट जीपीटी जो जवाब देता है उससे पता चल जाता है? जी पता चल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि चैट जीपीटी से सवाल पूछा हो, प्रॉम्प्ट पूछी हो तो उसका जवाब ना आया हो? जी ऐसे भी होता है बहुत टाइम। कम टाइम ऐसा होता है कि उससे क्वेश्चन करो और क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होता है। तो फिर उस वक्त क्या करते हो? फिर जिमिनी यूज करते हैं। जिमनी से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं? असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाती हैं और क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। उसके ऊपर कभी इमेज बनाया? क्या सर जी? जेमिनी को इस्तेमाल करके कभी इमेज बनाया? जी बनाया। अच्छा, ये जो एआई टूल है, एआई की वजह से कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं, इसके नुकसानात भी हो रहे हैं। फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? फायदे ये हैं हम 24 घंटे की सुबह हासिल कर सकते हैं। और नुकसान ये है कि हम उसमें समझ नहीं सकते, ओनली हासिल कर सकते हैं और समझ नहीं सकते। एआई की वजह से बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा हो रहा है। जी थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है इससे, यही से थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है। कैसे कैसे हो रहा है? हम एआई से कोई भी सवाल करें वो तुरंत जवाब दे देता है और पता लग जाता है और हम उसे समझ सकते हैं। एआई जो है ये इंसानों का काम कर रहा है और इंसानों का काम करने की वजह से जो मशीन है वो इंसान की जगह ले रही है, जिसकी वजह से हाथ से काम करने वाले जो मशीन पे काम करने वाले टास्क हैं वो अब मशीन खुद परफॉर्म कर रही है, खुद कर रही है, जिसकी वजह से इंसान की ज़रूरत इंडस्ट्री में कम होती जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ठीक है? लेकिन बेरोज़गारी कम अगर हो रही है, अपना बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है, तो फिर तो यही का नुकसान है। हम कहते हैं ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जी सर आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। एआई से जॉब के मौके पैदा हो रहे हैं? नहीं। कैसे नहीं हो रहे? एआई जो है वो तो डाटा एनालिटिक्स
की फील्ड में जॉब पैदा कर रही है, मशीन लर्निंग की फील्ड में जॉब पैदा कर रही है, डाटा स्ट्रक्चर की फील्ड में जॉब पैदा कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इससे तो जॉब के मौके नहीं पैदा हो रहे। जॉब के मौके पैदा हो रहे हैं, लेकिन उस जॉब तक जो रसाई है वो आम बंदे के लिए मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो खेलों में दिलचस्पी रखते हो? यस। कौन से खेल में दिलचस्पी रखते हो? बैट बॉल वगैरह हो गया, क्रिकेट और बैडमिंटन। क्रिकेट में क्या खेल खेल लेते हो? बैट्समैन हो या बॉलर हो या फील्डर हो? बॉलर। हालत जो है, फिजिकल कंडीशन तो बॉलर वाली नहीं लगती। स्पिन बॉलर तो नहीं कहीं? यस, स्पिन बॉल हुआ था। तो जो बॉलिंग का शोबा है या बैटिंग का भी शोबा देख लें, इसमें तो हमारी कौमी टीम जो है वो फेल हो चुकी है, और सारे जो बड़े मैच हैं वो हम हार जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ हम हार जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहत? वो एक्चुअली नियत से नहीं खेलते। अगर नियत से खेला जाए तो काफी बेहतर है। क्या सिर्फ नियत का ही मसला है? जी सभी, क्या कहा आपने? क्या सिर्फ नियत ही खराब है या कोई और भी मसला है? और नियत भी खराब है और सर्वे का ही मसला है उनकी। जुआ खेलते हैं। जुए में तो पाबंदी है, फिर कैसे खेलते हैं? वो इसी तरह पैसे देते हैं कि आप हारते हो वो हार जाते हैं। ये तो अगर नियत से खेला जाए तो जीतते हैं। टीम की हालत देख के तो नहीं लगता कि इनको कोई पैसे भी देता होगा हारने के। ये तो बगैर पैसे दे के हार जाते हैं। इनकी तो ना वो क्वालिटी नहीं है, ना इनको खेलना आता है। इनसे अच्छा तो जो गली मोहल्ले की टीम है वो खेल लेती। जी बेशक, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही है। जो हमारी क्रिकेट टीम है, इस पे सिफारिश की बुनियाद पे खिलाड़ी भर्ती किए जाते हैं। क्रिकेट बोर्ड में सिफारिश की बुनियाद पे ओहदे बांटे जाते हैं। वो लोग जब सिलेक्शन करते हैं तो उन्हीं लोगों को भर्ती करते हैं जो सिफारशी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों की जो टीम होती है उस पे मेरिट पे कोई भी नहीं होता, और जो अच्छी टीमें हैं उस पे सारे खिलाड़ी मेरिट पे होते हैं, उनको खेलना आता है। इस वजह से वो इस टीम को हरा देते हैं। ये फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ एम्पायर ने धांधली कर दी या जुआ खेला। तो बात ये है कि खामियां इनके अंदर हैं। इनको जो माजी में खिलाड़ी थे उनको खेलना आता था, वो मेरिट पे भर्ती हुए थे, फिर वो टीम के लिए खेलते थे। ये जो हैं सिफारिश पे टीम पे आए आते हैं, और जब टीम में आ जाते हैं फिर कमर्शियल और एडवर्टाइजमेंट बनाने पे लग जाते हैं, और इनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना हो जाता है। मुल्क और कौम की इज्जत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो रिजल्ट ये होता है कि फिर ये बड़े इवेंट में हार जाते हैं। कौम इनसे बड़ी तवक्कुआत रखती है, और ये कौम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती। तो इसी तरह से जब तक लोअर लेवल पे टैलेंट नहीं आएगा अच्छा सामने, और खिलाड़ी मेहनत नहीं करेंगे, वो कामयाब नहीं हो सकते। जैसे आप एक क्लास के अंदर कोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो अच्छे नंबर लेते हैं, पास होते हैं, और जो स्टूडेंट शरारती होते हैं, काम नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। वो फिर